اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آغاز کرتے ہیں اپنے آج کی تیسری نشست کا۔ ہماری یہ تیسری نشست مسمی پسچ باید کرد اقوام مشرق سے ہے، اور اس تیسری نشست میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہم کلام ہیں خورشید سے، یعنی کہ سورج سے، اور اس کا عنوان کچھ یوں ہے: خطاب و مہر عالم تاب، یعنی دنیا کو روشن کرنے والا سورج اور اس سے خطاب۔ تو اس کا آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں: اے میرے خاور اے مہر منیر، می کنی ہر ذرہ را روشن ضمیر، کہ اے روشن سورج تو کس قدر دل آویز ہے کہ تیرے طلوع ہونے سے اس دنیا میں موجود تمام ذرے روشن ہو گئے۔ پھر لکھتے ہیں: اے سلار مشرق اے تابناکی خورشید، تو ہر ذرے کے باطن تک کو روشن کر دیتا ہے اور چمکا دیتا ہے۔ از تو ہی سوزو سرور اندر وجود، از تو ہر پوشیدہ رازوں کے نمود۔ فرماتے ہیں کہ تیرے وجود سے ہی اس مشرق میں اپنے خطہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تابناکی ہے اور یہ خطہ روشن ہے، اور تیرے ہونے سے ہی ہر وہ پوشیدہ ذرہ جو کہ چھپا ہوا ہے اس کو نمود، یعنی کہ خود کو ظاہر کرنے کا ڈنگ آ گیا ہے۔ می رود روشن ترس دستے کلیم، زور کے زرین تو درجو سیم۔ فرماتے ہیں کہ تو دستے کلیم سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یہاں ذکر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ مبارک کا، کہ ان کا ید بیضا، کہ ان کا ایک ہاتھ انتہائی روشن تھا، اور ملتا ہے کہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ تو دست کلیم سے بھی زیادہ روشن ہے، زور کے زیریں تو درجو سیم، اور تیری جو کشتی ہے وہ چاندی سے چمکدار ندی کے اندر تیر رہی ہے۔ پر تو ماہ را محتاب داد، لال را اندر دل سنگاب داد۔ فرماتے ہیں کہ تیرے پرتو سے، یعنی تیری روشنی سے ہی چاند کو روشنی نصیب ہوئی، اور تیرے ہونے سے یہ جو جواہر ہیں سمندر کے اندر، ان کو رنگ ملے، ان کے اندر چمک پیدا ہوئی۔ لالا را از سوز دروں از فیض توست، در رگے او موج خوں از فیض توست۔ فرماتے ہیں کہ تیرے وجود سے، تیری کرنوں سے یہ جو لالا ہے، یعنی جو پھول ہے، اس کے اندر رنگ ہیں، اور اس کے اندر جو خون کی آمد و رفت ہے وہ تیری ان حسین کرنوں کی بدولت ہوئی ہے۔ نرگساں صد پرد اور آب بر می درد، تو نصیب از شعائے تو برد۔ فرماتے ہیں کہ جو نرگس کا پھول ہے وہ ہزارہا پردوں کو چیر ڈالتا ہے تیری ایک کرن کو دیکھنے کی خاطر اور تیرا دیدار کرنے کی خاطر۔ اب یہاں ہمیں اقبال کے ذوق کا، ان کی وسط نظر کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ایک شاعر چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، مظاہر قدرت کو کس طرح دیکھتا ہے، کیونکہ تمام انسان طلوع آفتاب کو دیکھتے ہیں، مگر ایسے اشعار ہر کوئی بندہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ کچھ دیکھتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں، مگر جو عاشق الہی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور فطرت الہی کے تمام مظاہر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو اپنی سیرابی کا اصول بناتے ہیں، اپنی روح کی سیرابی کا اصول بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال کے تمام تر اشعار جو انہوں نے آفتاب کے طلوع پر لکھے وہ کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں: خوش بیا صبح مرا آوردائے، ہر شجر را نخل سینہ کردائے۔ فرماتے ہیں کہ تو نے میری صبح کو منور کر دیا۔ خوش آمدید ہے آفتاب، خوش آمدید، تو نے ہر شجر کو سینہ کی طرح منور کر دیا۔ یہاں پھر سے اقبال
सीना का जिक्र फरमा रहे हैं, वो पहाड़ जिसके ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दीदार इलाही नसीब हुआ। तो इकबाल उसी का जिक्र फरमा रहे हैं। इकबाल लिखते हैं, तू फरोगे सुबह मन पायान रोज, दर ज़मीरे मन चिरागे बरफरोज। फरमाते हैं कि तू सुबह की मानिंद है जबकि मैं शाम की तरह। ऐ सूरज, मुझको भी अपने वजूद की तरह रोशनी और हरारत बख्श, ताकि मैं इस दुनिया के लिए फायदा मंद साबित हो सकूं। तेरा हम खाकम रा सरापा नूर कुन, दर तजल्ली हाय खुद मस्तूर कुन। फरमाते हैं कि मेरी स्याह को खाक को सरापा नूर कर दे और अपने जलवों में मुझे छुपा ले। यहाँ इकबाल इससे आगे चल के मनाजात रखते हैं अल्लाह के हुजूर, और सूरज की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जिस तरह है पाक परवरदिगार तूने इस सूरज को रोशनी बख्शी है, मेरे इस स्याह वजूद को भी वो नूर बख्श, ताकि मैं इस दुनिया को अपनी शुआओं के जरिए दोबारा से नूर से मुनव्वर कर सकूं। ताबरोज़े आर में शब अफकार शर्क, बर्फरोज़म सीना अहरार शर्क। तो इकबाल यहाँ फरमाते हैं कि जब तो मुझे मेरी स्याह हस्ती को नूर से मुनव्वर कर देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मशरक के अंदर एक नई जान फूंक दूंगा और ऐसे अहरार पैदा करूंगा जिनके पास एक नई सोच होगी, एक नई फिक्र होगी। तो इसके बाद लिखते हैं, अज निवाए पुख्ता साजम खामरा, गर्दशे दी गर्द हम्मा यामरा। और मैं एक ऐसा नगमा आलापूंगा जिसके जरिया से ये खाम पुख्ता में बदल जाएंगे, और गिरदशे दी गर्द हम्मा यामरा, और मैं अयाम की गर्दिश को तहोबाला करके उसको बदल कर रख दूंगा। एक नया निज़ाम नाफिज करूंगा जिसके अंदर ये फलें फूलें और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करें। फिक्रे शर्का जाद गर्दद अज फरंग, अज सुरूदे मन बगीरत दाब और रंग। तो यहाँ इकबाल अपनी वो सोच, अपने वो अफकार, अपना वो मिशन अल्लाह पाक के सामने रख रहे हैं। क्या पाक परवरदिगार, अगर तू मेरी स्याह हस्ती को नूर से मुनव्वर करेगा इस सूरज की मानिंद, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने मशरक, अपनी कौम को अफरंगी सोच से आजाद कर दूंगा, और वो जंजीरें, यूरोपी सोचों की जंजीरें और मादी अशिया की जो जंजीरें इनके पांव में पड़ी हुई हैं उनको तोड़ कर रख दूंगा। फिक्रे शर्क आजाद गर्दद अज फरंग, असरुद मन बगीर दाब रंग। और अपने नगमा के जरिया से इनकी आबियारी करूंगा और इनके अंदर एक नए रंग भर दूंगा। जिंदगी अज गर्मी जिक्र अस्तो बस। तो यहाँ इकबाल जिक्र फरमा रहे हैं जिक्र के हवाला से, हुरियत जिफ्त फिक्र अस्तो बस। इकबाल अपने इस शेर में दो अरकान का जिक्र करते हैं, जिक्र और फिक्र का, क्योंकि सूफिया के यहाँ दीन के दो अरकान हैं, जिक्र और फिक्र। इन्हीं पर तमाम तर इंसानी वजूद की बुनियाद है। जिक्र और फिक्र के बगैर इंसान खोखला है। अगर एक इंसान बज़ाहिर पाक है मगर उसकी फिक्र आलूदगियों में डूबी हुई है तो वो काबिल कबूल नहीं। और इसी तरह एक इंसान अगर फिक्र के हवाला से मुनव्वर है, उसकी फिक्र साफ है, मुसफ़ा है, मगर बज़ाहिर वो पाकी को अपनाए हुए नहीं, तो ये चीज़ भी इस्लाम में कबूल नहीं। तो अल्लाह ताला का आशिक इन दोनों अरकान को अपने साथ लेकर चलता है और जिक्र और फिक्र की आज़ादी और पाकी के साथ अपनी तमाम तर मनाजिल को तय करता है। तो इकबाल उसी जानिब इशारा फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, चू शवद अंदेश आए कौमे खराब, ना सरागर्दत बदस्तश सी में नाप। फरमाते हैं कि जिक्र और फिक्र के आलूदा होने से क्या होता है, उसके नताइज क्या निकलते हैं कि कौमें खराब हो जाती हैं। और एक कौम जिसकी फिक्र खराब हो जाए उसका तमाम तर हालात वाक़यात बदल कर रह जाते हैं, और उनका जो हाथ होता है उसके अंदर अगर हम चांदी का सिक्का देंगे तो वो भी खोटा हो जाएगा। इस कदर बुरे हालात से वो दो चार हो जाती है। मीरद अंदर सीना अशकल्बे सलीम, दौर निगाहे ऊ का जायद मुस्तकीम। फरमाते हैं कि जो कल्बे सलीम उस उम्मत का होता है वो उनके सीना में मर कर रह जाता है। दर निगाहे ऊ का जायद मुस्तकीम, और जो उनकी आंख है वो राह मुस्तकीम यानी सीधी राह देखने की बजाय टेढ़ी राह देखती है,
और हमेशा किसी मुख्तसर रास्ते के जरिया से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश में लग जाती है। बरकराज हरबो ज़रबे कायनात चश्मऊ अंदर को बीनद हयात। फरमाते हैं कि उसकी जो बेकरां वुस्ते नजर है वो इंतहाई महदूद होकर रह जाती है, और दुनिया के अंदर वलवले और जितने भी जंगो जदल हो रहे होते हैं उनसे वो गुरेज करती है। ऐसी कौम अपना जो हयात है, अपनी जिंदगी है, वो सुकून में तलाश करती है। तो इकबाल यहाँ इशारा फरमा रहे हैं जिहाद की अजीम वसफ की जानिब। मुसलमान कौमें माजी में जब तक जिहाद को अपनाए हुए थीं, उन्होंने तमाम दुनिया पर हुकूमत की, मगर जैसे ही उन्होंने जिहाद को फरामोश किया वो यूरोपीय अहकाम और यूरोपीय पाबंदियों के नीचे दब कर रह गईं। तो इकबाल उसी जानिब इस शेर में इशारा फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं मौज अज दरियाश कम गर्दत बुलंद गोहरे ऊंचू हजफ ना अर्जमंद। फरमाते हैं कि उसकी मौजों में ऐसी मिल्लत जिसके जिक्र और फिक्र आलूदगियों में डूब चुके हों और मुकम्मल ना हों, उनकी मौजों में इज़्तिराब पैदा नहीं होता, और वो ऐसी लहरों से महरूम होती हैं जो वैरानों के अंदर जाएं और तहोबाला करके नया निज़ाम नाफिज कर सकें। गोहरे ऊंचू हजफ ना अर्जमंद, और उनका जो गोहर है वो खोटा होकर रह जाता है। इसके बाद लिखते हैं, और ये इकबाल अपना आखिरी शेर इस बाब का पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं पस न हस्ती बौदश्त तहीर फिक बाद आसान शवत तामीर फिक। इकबाल फरमाते हैं कि बेटा अगर तू एक नई कौम इजाद करना चाहता है, इनकलाब लाना चाहता है और ऐसी मिल्लत पैदा करना चाहता है जिसके नौजवान मर्द मोमिन हों और हमेशा हालात के साथ बरसरे पैकार रहें, तो तू क्या कर, तू इनके फिक्र को ततहीर बख्श, इनके फिक्र को पाकी बख्श और इनके अंदर जिक्र की आदत पैदा कर, क्योंकि इन दो हथियारों के अलावा कभी भी एक नई मिल्लत पैदा नहीं हो सकती। बाद सा शवत्ता मीरे फिक्र, और अगर तू ऐसा कर लेगा, इनको पाकी बख्श देगा और इनके अंदर इनके जाहिर और बातर दोनों को मुसफ़ा और साफ कर लेगा, उनको ततहीर बख्श देगा, तो तेरे लिए इनकी तामीर करना आसान हो जाएगी। एक ऐसी मिल्लत, एक ऐसी कौम की तामीर तेरे लिए आसान हो जाएगी अगर तो इनके अंदर जिक्र और फिक्र की हम आहंगी पैदा कर लेगा। तो इकबाल इसी नसीहत के साथ अपने इस तीसरे बाब का इख्तिताम फरमाते हैं। इससे पहले हम इकबाल का जो बाब आप के सामने रखे थे वो मौला रूम के साथ उनका खिताब था, उनके साथ उनके हम कलामी थी, और उससे पहले किताब पढ़ने वालों के हवाला से आप अहबाब के सामने एक सेशन पेश कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है इसी तरह आगे आने वाले तमाम अबवाब को आप अहबाब के सामने आसान और उर्दू तफसीर के साथ पेश करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को इसको पढ़ के, इसको सुन के इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।